Assalamualaikum. This is Eman Fatima from BS Honors Biochemistry, fourth semester. I am going to discuss nutrition and digestion in gastrointestinal tract. So let's start here. What is nutrition? Nutrition is actually the way in which organisms obtain and use food. From here, we can determine the importance of food. Food is very important for fueling metabolism. All the metabolism running in our body needs energy and fuel, and that energy is present in the food which we take in our daily routine. Food is also very important for continuity of life. For food to be usable, it needs to be broken down into smaller particles, and that particles are in the form of amino acids, monosaccharides, and triglycerides. Um, Nutrition is actually a sequential process. It includes all these events. It includes ingestion and then digestion, absorption, assimilation, and at the end ejection. Uh, I'll discuss some detail of all these events. Um, Ingestion. Here starts the process. When food is put into the mouth, the process in scientific terms is known as ingestion. After entering the mouth, the food first comes in contact with our tongue. Now we get the taste. Because we all know there are taste buds present in our tongue which help to get the taste, whether the food is sweet, salty, or sour, etc. Our sharp teeth help to bite and chew the food. uh, उसके बाद जो है वो saliva रिलीज होता है हमारे salivary glands से which are present below the tongue. This saliva mixes with the food and forms a paste called bolus which makes food easy to swallow. Because जो फूड की बाइट हम लेते हैं वो रिलेटिवली लार्जर होती है और उसको एज इट इज़ डाइजेस्ट करना और एज इट इज़ उसको एसोफेगस से पास करना इजी नहीं होता. तो उस इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए टीथ की हेल्प से फूड को छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर दिया जाता है और उसको एसोफेगस से पास करने में आसानी हो इसलिए उसको स्लाइवा के साथ मिक्स करके पेस्ट बना दिया जाता है. द पर्पस ऑफ स्लाइवा इज एक्चुअली टू लुब्रिकेट द फूड. तो स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नाउ डाइजेशन. Digestion is actually a physical and chemical breakdown of food into smaller, more soluble subunits. There are two types of digestion: physical digestion and chemical digestion. Physical digestion is actually physically breaking up of food. जो physical digestion है ये mouth में भी होती है, हमारे stomach में भी होती है. माउथ के अंदर टीथ की हेल्प से फूड को जो है क्रश और ग्राइंड करने को फिजिकल डाइजेशन कहते हैं. और स्टमक के अंदर, स्टमक जो है ये एक मस्कुलर बैग है एक्चुअली. तो मसल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते हैं और जो इसकी वजह से जो कंटेंट्स हैं स्टमक के अंदर वो चर्न हो जाते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड हो जाते हैं. उसके बाद केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन जो है वो एंजाइम्स की हेल्प, केमिकल्स की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करना केमिकल डाइजेशन कहलाता है. इसमें एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं, केमिकल्स जैसे HCl, ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में के जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो आते हैं. Digestive system is actually gastrointestinal tract. It is a tube-like structure. It includes mouth, pharynx, esophagus, stomach, then small intestine, large intestine, and then rectum. इसमें जो है वो ग्लैंड्स भी हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में, जैसे लीवर और पेनक्रियाज. तो ये ग्लैंड्स जो है एक्चुअली फूड का पाथ नहीं है. जो फूड है वो इनसे गुजरती नहीं है, लेकिन इनकी सिक्रेशंस जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं डाइजेशन. डाइजेशन इन माउथ. डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट्स इन द माउथ. इसमें फिजिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है. कि फिजिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ teeth and chemical digestion with the help of enzyme amylase which is secreted by salivary glands.
जो amylase works at approximately 7 pH, मीन्स इसकी जो pH है तकरीबन न्यूट्रल होती है, और ये जो है amylase जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज. Digestion in stomach. Food waves of muscular contraction moves the bolus down the esophagus to the stomach. अब इस wave of muscular contraction and relaxation को peristalsis कहते हैं. तो फूड जो है वो पेरिस्टालसिस की हेल्प से एसोफेगस से स्टमक में आती है, और स्टमक के अंदर जो है सेल्स जो है स्टमक की लाइनिंग में ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं. गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीएजेस एंड म्यूकस, ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड help lowers the pH approximately 2 pH, and it also kills the bacteria. Bacteria which we unknowingly take with the along with the food, तो उन बैक्टीरिया को भी जो है वो किल करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हेल्प आउट करता है. Proteases are enzymes that break down proteins. Proteins की digestion करते हैं. Mucus protects the wall of stomach against the acid in HCl. क्योंकि HCl और enzymes जो हैं ये स्टमक के वॉल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टमक की वॉल है वो इटसेल्फ प्रोटीन्स से बनी होती है. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो म्यूकस है वो रिलीज किया जाता है. स्टमक की लाइनिंग के साथ साथ म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को. HCl also activates enzymes. जो pepsinogen is actually a protease enzyme. It is released in an inactive pepsinogen form. तो इसको HCl की हेल्प से एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. In addition to chemical digestion, there also occurs physical digestion in stomach, क्योंकि स्टमक में फिजिकल डाइजेशन होती है मसल्स की हेल्प से. नेक्स्ट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो बॉलस जो है जो माउथ से स्टमक में आया था, उसके स्टमक के अंदर जब फर्दर डाइजेशन होती है और उसका फर्दर एक पेस्ट बनता है, वो जब फिर स्टमक से रिलीज होता है तो फिर उसको उसी बॉलस को हम काइम बोलते हैं. काइम की पीएच जो है वो एसिडिक होती है. ये एसिडिक इसकी नेचर होती है. इट लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब, coiled and compact, and its inner diameter is small, hence called small intestine. The environment in the small intestine is alkaline due to bile given out by gallbladder. जो bile है ये एक्चुअली लिवर से रिलीज होता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है. जब और यहाँ से गॉल ब्लैडर से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है. तो इसकी जो पीएच होती है ये अल्कलाइन होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है इसी की वजह से अल्कलाइन होता है. मोस्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम. ड्यूडेनम इज एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. Chyme in small intestine is acted upon by secretions from 2 glands, liver and pancreas. तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. Pancreas and liver. Pancreas, these two are actually glands which secrete enzymes and secretions. Pancreas releases pancreatic juice. It includes enzymes, amylase, protease and lipases. amylase जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीज जो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. लाइपेज जो है लिपिड्स के ब्रेक डाउन करता है. तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर अल्कलाइन सोल्यूशन भी होता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं. इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक काइम, क्योंकि काइम की पीएच जो है वो एसिडिक होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एनवायरनमेंट अल्कलाइन होता है. तो उसको एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट पेनक्रियास से रिलीज होता है. लिवर प्रोड्यूसेस बाइल.
as I already discussed, that liver produces bile, and this bile is stored in gallbladder. Bile contains no enzymes but salts. मीन्स बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं. दिस सॉल्ट्स हेल्प्स टू इमल्सिफाई फैट्स. क्योंकि फैट्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और दैट इमल्सिफाइंग जो पीसेस होते हैं उनके ऊपर जो है वो लाइपेजेस को एक्ट करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू लार्जर पार्टिकल्स. Bile also contains substances to neutralize acidic chyme. If we look inside the small intestine, the lining of intestinal walls has finger-like projections called villi to increase surface area. Here also the structure of villi is shown. The villi are covered in microvilli which further increase surface area for absorption. So, in between the villi in the wall of small intestine, glands secrete intestinal juice important for neutralizing chyme. Means जो intestine की walls हैं वो उनके अंदर villi भी होते हैं, और उन villi के दरमियान में जो glands होते हैं वो secretions release करते हैं. Epithelial cells in the lining of small intestine also produce enzymes. एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. इन एंजाइम्स में अमाइलेज होता है. अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है, एंड प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. तो मीन्स जो ड्यूडेनम के अंदर है मोस्टली डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है. डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम के अंदर कंप्लीट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मोनोसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में अंदर टूट जाते हैं. So here the process of digestion almost completes, and now starts a process of absorption. Nutrients from the food pass into the bloodstream through the small intestine walls. Small intestine की walls के through जो है वो blood stream के अंदर nutrients move कर जाते हैं. This process is called absorption. इसमें जो है वो वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन भी होती है, वाटर की भी, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है. मोनोसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं डायरेक्ट. स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं मोनोसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स. एंड देन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स जो हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम में यानी लैक्टील जो है जो विलाई के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टील में आते हैं जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टील में, लैक्टील से फिर ये लार्जर लिम्फेटिक डक्ट्स में चले जाते हैं, और फिर वो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो इसको ड्रेन कर देती हैं ब्लड के अंदर. मतलब जो अल्टीमेटली जो ब्लड के अंदर आ जाते हैं ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. Now, small intestine has adapted itself for absorption. It is very long, has many enfoldings and covered with villi. Each villus has many microvilli. All this increases surface area for absorption. So, nutrients are transported to liver in hepatic portal vein. जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो ब्लड से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हुए हुए हैं, that nutrients are transported to liver via hepatic portal vein. Now starts the process of assimilation. Assimilation जो है वो actually इसको कहते हैं कि जब blood से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दैट ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, और फिर बॉडी के अंदर हर सेल में और हर टिश्यू के अंदर वो जो ब्लड जो है वो पहुंचता है. एंड उस फिर ब्लड के बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. और फिर वो जो सेल्स हैं और वो टिश्यूज हैं उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं.
all this process is called assimilation. Means cells जो हैं वो assimilate करते हैं, nutrients assimilated in our cells, hence the process called assimilation. Now ejection. अब डाइजेशन भी होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी, और जो जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए थे उनको हमने असिमिलेट भी कर लिया. अब जो है वो इजेक्शन का प्रोसेस होता है. एनीथिंग दैट इज अनडाइजेस्टेड लीव्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर्स अ लार्ज इंटेस्टाइन. The first portion of large intestine is known as cecum. Here is the cecum. And water is reabsorbed in the colon. Colon के अंदर जो है वो water को reabsorb किया जाता है. There are many bacteria, symbiotic bacteria living in the colon. Symbiotic in the sense that there is a mutual benefit. मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो शेल्टर लेते हैं, हैबिटेट लेते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और जो हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया उनको भी ये जो है वो किल कर देते हैं. We gain vitamin B and K from these bacteria, and pathogenic bacteria numbers are controlled. Undigested material and bacteria, etc., enter the rectum and expelled through the anus. This process is called ejection or excretion. Here, the nutritional process is complete from mouth to anus. Now, here is some summary. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and ejection. Nutrition involves all these events. This is actually a sequential process, and these processes I have discussed. So thank you very much. I hope this makes sense. So, Allah Hafiz.